सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुकारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्यो ते पदनम श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निजमति मापाई में मानी छे अहो राजचंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जीनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन जय 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 सद्गुरु। આપણે બધાને વિદિત છે એમ પરમ વિદુષી આદરણીય બેન શ્રી સુનંદાબેન વોરા કોઈ જીવો ગલતીથી અન્ય પર્યાયમાં આવી જાય છે એમ સુનંદાબેનનો મારે વધારે પરિચય નથી, પણ જેટલો પરિચય છે એનાથી મને એવો ખ્યાલ આવ્યો કે ગલતીથી સ્ત્રી પર્યાયમાં આવી ગયા. એકચ્યુઅલી એ પુરુષ પર્યાયમાં આવવા યોગ્ય વ્યક્તિત્વ હતો. એમનું તેજસ્વીપણું, એમનો પુરુષાર્થ ને એમને એમનું આખું વ્યક્તિત્વ જે છે એમાં જે એમણે પુરુષાર્થ સ્ત્રી પર્યાયમાં રહીને કર્યો છે એ સ્ત્રીઓ માટે એક મોટી પ્રેરણા છે. 98 વર્ષમાં એમની જે આવાજ હતી ને, આપણે અડધો કલાક લગભગ 35 મિનિટ જેવો એમનો વ્યાખ્યાન હતો, તો એમની આવાજમાં જે તેજ હતો ને એ પુરુષો કરતાં પણ કોઈ વિશેષ પ્રકારનું તેજ હતું. ને એમનો સંયમ જીવન, મને તો એક ઘટના તો ઘણી આશ્ચર્ય લાગી એમની. કોઈ મને બતાવ્યો કે જ્યારથી એમના પતિદેવ સ્વર્ગવાસી થયા ત્યારથી એમણે આદર્શમાં દર્પણમાં મોઢું નથી જોયું. આ કેટલી મોટી વાત કહેવાય છે. ને લગભગ મને લાગે એમના કેટલા વર્ષ પહેલા ગયા હશે એમના હસબન્ડ? એટલે એમના બાળકો 10-12 વર્ષના હતા ત્યારથી એમના પતિદેવ ગુજરી ગયા. એટલે લગભગ 50-60 વર્ષ થઈ ગયા છે નાની ઉંમર.
ને એમની લેખનીમાં પણ જબરદસ્ત તેજ હતું. એમને ઘણી બધી પુસ્તકો, મુખ્ય એમનો વ્યક્તિત્વ લેખિકા તરીકે હતો. સારા લેખિકા હતા વિદુષી. હા, ઘણા બધા યાદ કરી. અમેરિકા જતા પર્યુષણ કરાવવા ઘણા વર્ષો. એટલે ઘણો બધો એમના અંદર તેજ હતો, જે સામાન્ય સ્ત્રીઓમાં જોવા નહીં મળે એવો અસામાન્ય એમનો વ્યક્તિત્વ હતો. અને વિતરાગતાના અનુરાગી હતા. મુખ્ય વસ્તુ તો આ છે. તો આપણે પ્રેરણા લઈએ. બધા ધીમે ધીમે પુણ્યવાન લોકો ડિપાર્ચર કરે છે, પણ એ તો વ્યવસ્થા છે પ્રકૃતિની. નવા નવા આવતા જાય છે, પુરાના જતા જાય છે. એટલે આપણે તૈયાર થવાનું છે. એમનો આત્મા જો કે 2-4 ભાવમાં મોક્ષ જશે. અત્યારે જ્યાં હશે ત્યાં આપણે એમને પ્રણામ કરીએ, વંદન કરીએ અને એમને યાદ કરવા જેવા છે. સ્મરણીય છે વ્યક્તિત્વ. ઘણા બધા વ્યક્તિત્વ સ્મરણીય હોય છે. એમને યાદ કરવાથી વિશિષ્ટ પ્રકારની સ્ફૂર્ણા થાય છે. કેમ કે એમના વ્યક્તિત્વમાંથી વિશિષ્ટ પ્રકારનો ગુણ ખીલે છે. એ જ આપણે દૃષ્ટિગોચર આવે, બીજું કોઈ દૃષ્ટિગોચર નહીં આવે. વ્યક્તિત્વ આમ ઘડાયેલું હોય ને, કોઈકને યાદ કરીએ તો એનો આખું વ્યક્તિત્વ વાત્સલ્યમય હોય, તો એમાંથી આપણને વાત્સલ્ય ગુણ નજર આવે. કોઈકનું આખું વ્યક્તિત્વ વૈરાગ્યમય હોય છે, તો એમને આપણે યાદ કરીએ તો આપણને આખો વૈરાગ જ યાદ આવે. કોઈકનું આખું વ્યક્તિ સંયમમય હોય તો આપણે એમનો સંયમ જ યાદ આવે. એમ એમનું આખું જે વ્યક્તિત્વ હતું એ ત્યાગ, વૈરાગ, સંયમ અને તેજના પુંજ એવા બેન શ્રી સુનંદાબેન, આપણે નમસ્કાર કરીએ એમને. અને ખાસ બહેનો માટે ઘણા બધા પ્રેરણાદાયક છે કે સ્ત્રી પર્યાયમાં રહીને એવું નથી કે માત્ર કોમળ ભાવનાઓથી જ જીવવાનું હોય છે. ઘણો પુરુષાર્થી બનીને પુરુષ જેવું જીવન પણ જીવી શકીએ છીએ. હા, હવે જેમના પતિદેવ ગુજરી જાય એમની કેટલા બધા વિઘ્ન આવતા હોય. છોટા છોટા નાના બાળકો હોય અને ધર્મને અધ્યાત્મને સાથે લઈને ચાલવું એટલે આ ઘણી અઘરી વસ્તુ છે. મમ્મીનું કર્તવ્ય નિભાવવાનું, પપ્પાનું કર્તવ્ય નિભાવવાનું, ઘર સંભાળવાનું, એટલે એમના બહુનું કર્તવ્ય નિભાવવાનું, અને સાથે સાથે પ્રાથમિકતામાં ધર્મ અને અધ્યાત્મ રાખવો, આ ઘણી અઘરી વસ્તુ છે. બાકી તો વ્યક્તિ એમ જ વિચાર કરે ને કે અત્યારે તો છોકરાઓ નાના છે, અત્યારે અમારા હસબન્ડ રહ્યા નથી, એટલે અત્યારે અમારા થોડા વર્ષ તો 5-50 વર્ષ તો કમસે કમ ઘરગ્રસ્તીમાં છોકરાઓને મોટા કરવા એમાં લગાડી અને પછી પાછળથી ધર્મ કરીશું. પણ એમના જીવનમાં એવું નથી. પ્રાથમિકતા ધર્મને જ આપી દરેક વખતે, અને સાથે સાથે ગ્રહસ્થ જીવન હતું, જીવતા રહ્યા. તો એક પ્રેરણા છે. સીતા માતાની જેમ. સીતા માતા નાના હતા ને, લવકુશનું લાલન પાલન કરવો અને પ્રાથમિકતા ધર્મને આપવી. ઓમ સદગુરુ દેવ કી જય. આપણે પ્રકૃત વિષય ઉપર આવીએ. જિન અર્ચનામાં પૃષ્ઠ સંખ્યા 75, સંવર ભાવના એનું અનુશીલન. 12 ભાવનાનું અનુશીલન ચાલે છે. એમાં સંવર ભાવના શ્રી મંગતરાયજી કૃત. એક લાઈન બધાને ઝેલવાની છે. जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता, त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता, पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को, व्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को, दशविध धर्म परिशह 22 भावन को, यह शुभ भाव
दशविध धर्म परीशः 22 12 भावन को। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते। सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संबर भावे। भाशुभ रहित शुद्ध भावन संबर भावे। डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता। त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को। दशविध धर्म परीशः 22 12 भावन को। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते। सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संबर भावे। डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। संबर भावना। संबर मतलब आश्रव से जस्ट उल्टा। आश्रव किसे कहा था आपने? कर्म का आना आश्रव। आना मतलब कर्म का निर्माण होना, बनना। द्रव्य कर्म भाव कर्म दोनों। और संबर का मतलब कर्म का आना रुक जाना। अब उनका नया निर्माण नहीं होगा, अब कर्म बनेंगे नहीं। तो जिन जिन भावों से कर्म आते हैं उन उन भावों से ठीक विपरीत भावों से कर्म जाते हैं। जाते हैं मतलब रुक जाते हैं। तो किन किन भावों से कर्म आते थे? मिथ्यात्व ये 4 बताए थे। प्रमाद नहीं था पर अपन प्रमाद भी ले लें तो मिथ्यात्व, असंयम, प्रमाद, कषाय और योग, इनसे कर्म आते थे शुभ अशुभ। अब इनको रोक दो तो ऑटोमेटिक संवर हो जाता है। जे कारण बंधना तेह बंधनो पंथ। ते कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ भव अंत। तो उन कारण को आप छेद दो तो ऑटोमेटिक बंद हो। तो उन कारणों को यहां पर बताते हैं किन किन कारणों से संवर होता है, कर्म का आना रुक जाता है। जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, पहले दृष्टांत कहते हैं। त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। वहां के जो सरजल आवत मोरी त्यों, ऐसा कहा था ना आश्रव भावना में। तो जैसे मोरी से सरोवर में जल आता है, मोरी मतलब नाली, अलग अलग नालियों से सरोवर में जल आता है। अब उस नाली को अगर बंद कर दिया जाए, यहां क्या कहते हैं, जो मोरी में डांट लगावे है, जिस नाली से वो पानी आ रहा था उसमें अगर अपन डांट लगा दें, कपड़े से, पत्थर से, किसी से भी उसको पैक कर दे उस नाली के छेद को, तो वो पानी आना रुक जाता है। उसी प्रकार से यहां पर बता रहे कि जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता,
त्यों आश्रव को रोके संबर, क्यों नहीं मन लाता। उसी प्रकार है वो आश्रव को ये संबर रोकता है, तो अपने मन में वो क्यों नहीं लाता है। और करना तो सब मन का ही है, मन से ही आश्रव होता है और मन से ही संवर होता है, भाव बदलने से होता है। देखो, आश्रव में भी भाव है और संवर में भी भाव है। ऐसा नहीं है कि हमको भाव नहीं करना है, भाव तो करने, परंतु उसके जस्ट विपरीत भाव करने हैं। अभी पहले आश्रव भाव कर रहा था, अब कौन सा भाव करना है, सम्यक्त्व भाव करना है। मिथ्यात्व के भाव हो रहे थे, अब क्या हो रहा है, सम्यक्त्व के भाव हो रहे। पहले असंयम के भाव कर रहा था, अब संयम के भाव कर रहा है। पहले प्रमाद भाव कर रहा था, अब अप्रमाद भाव कर रहा है। पहले कषाय भाव कर रहा था, अब वितराग प्रशांत भाव कर रहा है। पहले योग कर रहा था, अब योगों को समेट रहा है। ये सब जिसका उल्टा कर रहा है, तो ऑटोमेटिक होगा, भाव तो दोनों में चल रहे हैं, बस अपने को बदल देना है। एक मन की दिशा को, अपने विचारों के प्रवाह को जब बदल देते हैं तो संसार मोक्ष में बदल जाता है, दुख है वो सुख में बदल जाता, ऑटोमेटिक वहीं के वहीं बैठा हुआ है, कुछ करना नहीं है हमको। और एक मन की वृत्ति बदल देने से सब कुछ ठीक हो जाता है। त्यों आश्रव को रोके संवर, क्यों नहीं मन लाता। उसी प्रकार से आश्रव को संवर रोकता है। देखो, ज्ञानी जन होते हैं ना, जो आश्रव के कारण होते हैं उसमें वो संवर कर लेते हैं। आश्रव का कारण उपस्थित हुआ परिस्थिति, और उसमें क्या कर लेते हैं, वो संवर कर लेते हैं। अभी दृष्टांत, किसी इष्ट का वियोग हो गया अपने घर में, अपने मां का, पिता का, पुत्र का, पत्नी का, पति का, किसी का भी इष्ट का वियोग हो गया। अभी जैसे इष्ट का वियोग हुआ अपने सुनंदा बहन का वियोग हुआ, तो अज्ञानी जन की वृत्ति और ज्ञानी जन की वृत्ति, अज्ञानी जन क्या है कि दुख करेगा, शोक करेगा उसके पीछे, और ज्ञानी जन क्या कहता है, क्या करेगा, वैराग्य लेगा उससे। अब शोक भाव है वो आश्रव भाव है, दुखी करता है, और वैराग्य भाव है वो संवर भाव है, वो कर्मों को आने से रोक देता है वैराग्य भाव, क्योंकि उसमें अनासक्ति छूटती है, निष्प्रता छूटती है। कि देखो, ऐसे अच्छे अच्छे, कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, कितना भी महान हो, परंतु एक दिन इस धरती को छोड़ करके जाना है, और कोई सदा कितना भी अच्छा हो हमारे साथ में नहीं रह सकता। यहां तक कि भगवान भी हमारे साथ में सतत नहीं रह सकते, गुरु भी हमारे साथ में सतत नहीं रह सकते, क्योंकि वो एक अलग व्यक्ति है। विचारों के रूप में रह सकते हैं, एक व्यक्ति के रूप में साथ में नहीं रह सकते। इसलिए प्रत्येक पर पदार्थ को एक दिन छोड़ना ही है, इसलिए उनसे मोह मत करो। तो क्या लिया उसने, वैराग्य धारण किया। इसलिए इस जगत में एक सारभूत तत्व है, तो वो एक ही है, वीतराग हो जाओ। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रसंग आते रहेंगे, जब तक संसार है तब तक अपने इष्ट का वियोग होता रहेगा, अनिष्ट का संयोग होता रहेगा। हम जो जो डाल पकड़ेंगे वो डाल टूटेगी, और हम दूसरी डाल पकड़ने जाएंगे वो डाल भी टूटेगी, तीसरी डाल पकड़ने जाएंगे वो डाल भी टूटेगी। आप किस किस को पकड़ोगे? इसीलिए अपने आप को पकड़ो, अपने आत्मा को पकड़ो और वीतराग हो जाओ। किसी इष्ट वियोग में, अनिष्ट संयोग में हमको किंचित भी दुख नहीं हो, कष्ट नहीं हो, ऐसी अपने आत्मा की दशा बना लो, सम अवस्था में आ जाओ। ज्ञानी ये बोध लेता है उसमें से, और अज्ञानी रोता रहता है। तो वही कारण था, कारण तो दुख का उत्पन्न हुआ, उसके आश्रव का उत्पन्न हुआ, और ज्ञानी ने लिया क्या बोध, वीतराग होने का बोध उसमें से निकाल लिया। यही कलाएं होती हैं, बस इतना ही अंतर है। मन की वृत्ति, मन के विचार, दृष्टियां बदल दी, सब कुछ बदल गया।
अब उसके भेद बताते हैं। संवर का मुख्य भेद, मुख्य कारण एक ही है, वीत राग भाव, मोह राग द्वेष से रहित हो जाओ, इससे संवर होता है। परंतु वो भी अलग अलग प्रकार के भावों से होता है। वितराग भाव ऐसे एकाएक नहीं हो जाता। वितराग भाव, उसके लिए भी अपने को अलग अलग प्रकार की भावनाएं करनी पड़ती हैं, तब जाकर के वितराग भाव में स्थिति होती है। तो वो बताते हैं कि कौन कौन से भाव करने से कर्म का आना रुक जाता है। पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर, वचन काय मन को, दशविध धर्म परिशह 22 12 भावन को। ये सब 57, पहले भी 57 गिनाए थे आश्रव के कारण, यहां भी 57 गिना रहे हैं। उसमें सबसे पहले पंच महाव्रत, 5 महाव्रत कहलाते हैं। व्रत किसे कहते हैं? व्रत का अर्थ होता, व्रत किसे कहते हैं कौन बताएगा? व्रत की परिभाषा। पाप को त्याग करने का आजीवन संकल्प धारण करना। हाँ बराबर, बहुत अच्छा। और यस, वेरी गुड, शाब्दिक अर्थ निकाला उन्होंने। व्रत का अर्थ वर्तन करना होता है, आचरण करना होता है। कैसा आचरण करना? तो जो शुभ व्रत होते हैं उसमें शुभाचरण होता है, अशुभ व्रत होते हैं उसमें अशुभ आचरण होता है। अब उसमें क्या करते हैं? आचरण करने की प्रतिज्ञा ली जाती है। करना तो आचरण ही है, पर आचरण करने का संकल्प लिया जाता है। अब संकल्प 2 प्रकार का, एक तो अच्छे आचरण करने का भी लिया जाता है और एक बुरा आचरण करने का भी लिया जाता है। हम वो महाभारत में, रामायण में ऐसे सुनते हैं ना, महाभारत में भीमसेन प्रतिज्ञा करता है। क्या प्रतिज्ञा करता है? कि मैं जब तक दुशासन की छाती का लहू नहीं पीऊंगा और इस दुर्योधन की जंघा को नहीं तोड़ूंगा, उसका वध नहीं करूंगा, तब तक मैं अपने पूर्वजों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा वो प्रतिज्ञा करता है। ये अशुभ आचरण है। इसने भी संकल्प किया, संकल्प नहीं किया ऐसा नहीं, इसको अशुभ आचरण कहते हैं। हिंसा का संकल्प लिया, क्षमा भाव नहीं रखा, मारने का संकल्प लिया। भले दुष्ट हो, कुछ भी हो, परंतु जहां क्षमा भाव रखनी पड़े वहां नहीं रख सका वो व्यक्ति। उतनी उनकी उस समय की गृहस्थ व्यक्ति थे, स्वाभाविक रूप से होता है। और दूसरी तरफ युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज इसलिए कहते हैं उनको कि उन्होंने अपनी की हुई गलती को स्वीकार किया और चुपचाप वनवास चले गए और अपने पापों का प्रायश्चित करने लगे। उन्होंने कोई ऐसा संकल्प नहीं लिया कि मैं इसको मारूंगा, मैं इसको ये करूंगा, मैं इसको, कोई संकल्प उन्होंने नहीं लिया। तो एक अशुभ संकल्प होता है, एक शुभ संकल्प। यहां शुभ संकल्पों का नाम व्रत कहलाता है। तो अशुभ 5 अशुभ कार्य हैं, अशुभ भाव हैं। एक्चुअली वो भाव हैं, और जब वो वचन में और क्रिया में आते हैं तो वो कार्य बन जाते हैं। उसमें सबसे पहला हिंसा का भाव है। किसी भी प्राणी को, उसके 10 प्राण होते हैं, उस 10 प्राणों में से किसी भी प्रकार के प्राण को कष्ट देना। 5 इंद्रिय प्राण, मन वचन काय रूप 3 बल प्राण, 1 श्वासोश्वास और 1 आयुष्य प्राण, ये 10 प्राण होते हैं। इन 10 प्राणों में से किसी भी प्रकार के प्राणों को पीड़ा पहुंचाना, घात करना, दुखी करना, कष्ट देना, इसका नाम हिंसा भाव कहलाता है। अंदर से भाव करना वो भाव है, और फिर क्रिया में आता है तो वो हिंसा की क्रिया बन जाती है, प्रवृत्ति बन जाती है। हिंसा की वृत्ति और हिंसा की प्रवृत्ति। तो यहां पहला व्रत ये लेता है व्यक्ति कि हिंसा की वृत्ति और हिंसा की प्रवृत्ति, मैं दोनों का आज से त्याग करता हूं। अर्थात मैं हिंसा का त्याग करता हूं। मैं मन वचन काय से किसी भी जीव को किंचित भी कष्ट नहीं दूंगा, ऐसा मेरा जीवन बनाता हूं, ऐसा मेरा अंतःकरण बनाऊंगा, और ऐसे ही मेरी प्रवृत्ति होगी कि उसमें किसी को भी कष्ट होगा। ये पहला व्रत कहलाता है, इसका नाम है अहिंसा व्रत। दूसरा सत्य व्रत। उसमें क्या संकल्प किया जाता है कि मैं कभी भी असत्य भाषण नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, सदा सत्य बोलूंगा। और फिर सत्य, कौन सा सत्य? हित, मित और प्रिय। जो सबके लिए हितस्वी हो, प्रिय लगे सामने वाले को, और
मित हो, मर्यादित हो, उसी प्रकार के मैं वचन उच्चारण करूंगा। किसी को कष्ट हो, दुख हो, नुकसान हो, ऐसे वचनों का मैं उच्चारण नहीं करूंगा। इसका नाम है सत्यव्रत। तीसरा, अचौर्य व्रत। मेरे अधिकार की वस्तु नहीं है, उसको मैं बिना पूछे ग्रहण नहीं करूंगा, उसका नाम हरण कहलाता है। बिना पूछे मेरे अधिकार की, मेरे स्वामित्व की जो वस्तु नहीं है, उसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा। दूसरों के अधिकारों को भी मैं अनधिकृत चेष्टाएं नहीं करूंगा। इस प्रकार के व्रत को अचौर्य व्रत कहते हैं। अर्थात मैं चोरी, बिना पूछे अपने अधिकार की वस्तु नहीं है उसको ले लेना, उसको चोरी कहते हैं। तो मैं चोरी नहीं करूंगा। चोरी करने से क्या होता है? दूसरों को कष्ट होता है, क्योंकि उसकी वस्तु चली गई। छोटी छोटी चोरियां भी हम करते हैं, बड़ी छोटी चोरी तो नहीं करते हैं। किसी ने कोई वस्तु, पुस्तक रखी, अपने अपने कक्ष में पुस्तक रखी हुई है। अब हमने क्या किया कि अपने को पढ़ने का मन किया, इसलिए हम अपने कमरे में ले गए उसको पढ़ने के लिए। देखो, एक ही घर में ऐसे चोरी होती है। हम उसको अपने कमरे में पढ़ने के लिए ले गए। अब वो पूछा नहीं उसको, अब वो आकर के देखता है और उसको, वो भी तो पढ़ रहा था पुस्तक, फिर देखता है पुस्तक ही नहीं है। फिर ढूंढता रहता है, वो कबाड़ खोलता है, इधर देखता है, उधर देखता, कोई भी पुस्तक, बेचारा बहुत परेशान होता है उसको। फिर लास्ट में सारा घर ढूंढता है, फिर पूछता है सबको कि भाई मेरी पुस्तक देखी कि नहीं देखी। फिर हम कहते हैं कि यार तेरी पुस्तक मैंने पढ़ने के लिए ली। अब वो इतनी देर तक वो दुखी हुआ, आकुल व्याकुल हुआ, उसका दोष किसको लगेगा? उसमें हम निमित्त बने, इसलिए हमने उसको बिना पूछे ली, इसलिए उसको दुख हुआ। ये अपनी अजागृति हुई, अपनी अजागृति का फल हमको मिलता है, इसको चोरी कहते हैं। हमारे घर में पैसे रखे हुए, अब पैसों का अधिकार किसका है? माताजी अथवा पिताजी के अधिकार में है वो। अब बच्चे अगर बिना पूछे उसको लेते हैं कि ये तो मेरे पप्पा के पैसे हैं, तो वो भी चोरी का दोष लगता है। ये छोटी छोटी चोरियां होती हैं। ऐसे जिसका भी हमारे अधिकार नहीं चलता है, उसको पूछ करके लेना, तो उसका नाम अचौर्य व्रत कहलाता है। फिर ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि एक श्रावक के लिए, गृहस्थ के लिए अलग होता है और मुनि के लिए अलग होता है। जो सर्वसंग गृहस्थ का त्याग करता है, उसके लिए तो सर्व प्रकार से स्त्री का त्याग। परंतु जो सर्व प्रकार से त्याग नहीं कर सका है, उसको अपना पति अथवा पत्नी, इसके अतिरिक्त संसार में अन्य जितने भी स्त्री पुरुष हैं, उसके प्रति देखने की दृष्टि, माता, बहन, पुत्री अथवा गुरु अथवा अथवा पिता, भाई, पुत्र अथवा गुरु, इस रूप में देखने की अपने को दृष्टि रखना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। ये 5 प्रकार के भाव हैं। उन भावों से क्या होता है? अशुभ आश्रव रुक जाता है, पाप रुक गए। आपने पुण्य भाव किए, इसलिए पाप सहज ही रुक जाते हैं। इसको पंच महाव्रत कहते हैं। प्रतिज्ञा और प्रत्याख्यान में क्या अंतर है? वो तो एक ही बात है। प्रतिज्ञा, प्रत्याख्यान है वो प्राकृत से आया हुआ शब्द है, तो उसको संस्कृत में प्रत्याख्यान हो गया, और वो हिंदी में आता तो वो प्रतिज्ञा हो जाती। शब्द फेर है, बाकी एक ही है। पचखान ऐसा कहते हैं ना, पचखान। तो ये पंच महाव्रत कहलाते हैं। फिर है समिति। समिति का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करना, उसका नाम समिति कहलाता है। अभी महाव्रतों में तो क्या है कि पाप प्रवृत्ति को रोक देना और पुण्य प्रवृत्ति करना। अब उस पुण्य प्रवृत्ति में कितनी पुण्य प्रवृत्ति करना, उसकी कोई मर्यादा नहीं की थी। अच्छे काम जितना कर सके उतना करो, सत्य जितना बोल सके उतना बोलो, अहिंसा का पालन, दूसरे जीवों को बचाने के लिए आप जितना कर सके उतना करो,
उसमें प्रवृत्ति का कोई संकोच नहीं किया था। अब यहां समिति में क्या है कि समिति में प्रवृत्ति को भी संकोच दिया, अर्थात अच्छे काम को भी अब कम करो। इसका नाम समिति कहलाती है कि आपको महाव्रत है, सत्य महाव्रत, तो अब सत्य बोलना है, पर सत्य भी अब आप कितना बोलो, जितना जरूरत हो उतना ही बोलो। दिन भर आप सत्य भी मत बोलते रहो, मौन रहो ज्यादा से ज्यादा। अब कोई बहुत से लोग ऐसे ना चर्चा ही करते रहते हैं, बातें ही अब कोई किसी को झूठी बातें तो नहीं कर रहे हैं, परंतु आप बातें ही करते रहोगे तो आपके वचन से जो शक्तियां जाती हैं, वचन योग है ये सब आपके। तो अब कहते हैं कि मुनियों को जिनको ध्यान आदि में शुद्धोपयोग में जाना है, उसके लिए कहते हैं कि अब आप अच्छी प्रवृत्तियों को भी कम करो, तब जाकर के आप आत्मा में जा सकते हो। दिन भर बोलते ही रहोगे, दिन भर दूसरे लोगों की जीवों की रक्षा करने में लगाओगे, तो आप आत्मा में स्थिर नहीं हो सकते। तो अब आपकी प्रवृत्ति को संकोचो, संकोच करके सम्यक प्रवृत्ति करना, इसका नाम समिति कहलाता है। तो अब कितना संकोच करके करना, तो 5 समितियां हैं। तो आपको जीवों की रक्षा करनी है ना, ये मुनियों के लिए, महाव्रत भी मुख्य रूप से मुनियों के लिए है, अपने लिए अणुव्रत हैं, और समितियां भी मुख्य रूप से साधुओं के लिए होती हैं। तो अब आपको अहिंसा का पालन करना है। तो आपको अहिंसा का पालन करने के लिए, जीवों की रक्षा करने के लिए आपको बहुत इधर दौड़ धूप नहीं करनी है। अरे वहां लोग बहुत दुखी है तो वहां जाकर के बचाओ, उस देश में बहुत दुखी है तो वहां जाकर के बचाओ, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको कितना करना है, केवल कि आपसे जितनी हिंसा होती है उतनी हिंसा से बच जाओ। तो सबको अभयदान दे दिया आपने। तो हमसे कितनी हिंसा होती है, मतलब साधु से कितनी होती है कि हिंसा के उसके बहुत प्रसंग नहीं होते हैं। वो जब गमनागमन करते हैं, चलते हैं, विहार करते हैं ना, उस समय ही उनसे जीवों की अरक्षा होने का, जीवों का घात होने की संभावना होती है, मात्र उस समय होती है, अन्य जगह नहीं होती है गमनागमन। तो वो क्या करते हैं कि जब गमनागमन करते हैं उस समय साधु को, मुनि को कहा कि आप 4 हाथ आगे देख करके चलो। इधर उधर की सारी दुनिया की चिंता अब आपको करने की नहीं है, आप केवल अपने को संभाल लो। 4 हाथ आगे देख करके चलो, इससे आपको आपके पैर में आकर के किसी भी प्रकार की छोटी मोटी जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, उसकी हत्या नहीं हो जाए। प्रासुक जमीन पे चलो 4 हाथ देख करके, बस इसका नाम इरिया समिति कहलाता है। देख करके 4 हाथ आगे देख करके चलना, इधर उधर दृष्टियां नहीं करना। तो आपका सारा, आपने समस्त जगत को अभयदान दे दिया उससे, क्योंकि मन में तो किसी को मारने की इच्छा है ही नहीं, और काय से भी जितना जीवों की हिंसा हो सकती थी उससे आपने इतनी सावधानी रख करके बच गए। अब आपका पूर्ण अहिंसा व्रत पल रहा है। इसको इरिया समिति कहते हैं। फिर भाषा समिति। अब सत्य महाव्रत में तो क्या था कि आप जितना बोलो उतना कोई दिक्कत नहीं, मत झूठ मत बोलो। पर यहां पर आकर के साधु को ऐसा कहते हैं कि आप सत्य भी सीमित बोलो। इसलिए उसमें एक शब्द हित, मित, हित और मित लगा दिया। हाँ। मितभाषी हो, बहुत बोलते मत रहो। जरूरत हो, आप साधु हैं, दूसरों को कल्याण के लिए व्याख्यान उपदेश आदि देने पड़ते हैं, तो जितनी देर तक आपको व्याख्यान उपदेश आदि देना है उतनी देर तक बोलो। फिर क्या करो, इधर उधर की बातें मत करो, चुप रहो, मौन रहो। इसलिए आपकी शक्ति बचेगी और उसको आप गहन ध्यान करने में लगाओ, शुद्धोपयोग में आप जाओगे। तो बोलना भी कम कर दिया यहां। तो हित, मित और प्रिय बोलना, इसका नाम भाषा समिति। हितकारी हो वही बोलना, अहितकारी हो वो नहीं बोलना। हितकारी किसे कहते हैं, जिससे आत्मा का कल्याण हो, उसका नाम हितकारी है। ऐसा नहीं समझना कि किसी की विषय कषाय आदि का पोषण कर दें तो वो हितकारी है। अपने
कोई व्यसन करने वाला अपने पास आया और वो अपने पास कुछ मांगता है और हमने उसको भाई इसके लिए हितकारी, अभी बहुत परेशान हो रहा है, मैं जब तक मैं ना दारू नहीं पीऊंगा तब तक मुझे शांति नहीं पड़ेगी, यूं कह रहा है। दारू पीने वाला अपने पास आया और वो मांगता है। अब वो अपने को यूं लगता है कि वो बहुत दुखी है, इसलिए दुखी है ना, इसलिए उसको थोड़ा बहुत दे दो। तो आप उसको दोगे तो उसके विषय का पोषण होगा, इसलिए वो उसके लिए हितकारी नहीं है। हितकारी उसको के वचन कहो ऐसे, भाई देखो मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, पर तू जो कर रहा है ना वो ठीक नहीं कर रहा है, उसको अच्छी शब्दों में उसको समझाओ, पर उसका पोषण करेंगे। और हम ऐसा करेंगे, अच्छी बात है और पियो, जाओ मस्ती करो, मौज करो, थोड़ा सा जीवन मिला है उसमें मौज शौक से जियो। तो आपने अपनी समिति से क्या कर दिया उसको। अब उस समय उसको तो ठीक लग रहा है, वो कह रहा है ये भी मेरी अनुमोदना कर रहे, मेरी प्रशंसा कर रहे, पर इससे संसार बढ़ाया, उसके पाप को आपने बढ़ाया, इसलिए पाप की अनुमोदना नहीं करना। जो हितकारी है वही बोलना। और प्रिय है, प्रिय में क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति को देखना, कषाय रहित शब्द बोलना, इसका नाम प्रिय बोलना कहलाता है। उसको जो पसंद है ऐसा बोलना, इसका नाम प्रिय नहीं है। कषाय रहित बोलना, उसका नाम प्रिय शब्द कहलाता है। बात हम उसको हितकारी कहेंगे, परंतु अंदर हम किसी प्रकार की आकुलता व्याकुलता रखेंगे नहीं, द्वेष भाव नहीं रखेंगे, राग भाव नहीं रखेंगे, और उसको हितकारी वचन कह देंगे, उसका नाम प्रिय वचन कहलाता है। जिसमें अपना स्वार्थ नहीं होता है वैसा सामने वाले को कहते हैं तो वो अच्छा लगता है। इसलिए महापुरुष गुरु वगैरह शिष्य को कुछ कहते हैं तो कभी कड़वी बात भी कहते हैं, पर वो कड़वी बात भी उसको बुरी नहीं लगती। क्यों बुरी नहीं लगती है? क्योंकि उसमें सामने वाला का कोई स्वार्थ नहीं है, उनका कोई कषाय नहीं है, इसलिए हमको अच्छी लगती है। शास्त्रों में आता है ना, आचार्य अपने को कहते हैं मूढ़, ऐसा भी कहते हैं, हे मूढ़, हे मूर्ख, संसारी, ऐसा कहते हैं। तो हमको कोई बुरा लगता है? वो बुरा नहीं लगता है, वो तो अपने ऊपर करुणा करके ऐसा बोल रहे, तो उसमें उनका कोई स्वार्थ भाव नहीं है, इसलिए ऐसा कहते हैं। तो हित मित प्रिय, तो ये भाषा समिति कहलाती। फिर ऐष्णा समिति, ऐष्णा का मतलब भोजन करने में सावधानी रखना, उसका नाम ऐष्णा समिति कहलाते हैं। तो मुनि के लिए 32 प्रकार के अंतराय और 46 प्रकार के जो दोष हैं उनको टाल करके भोजन करना, इसका नाम ऐष्णा समिति है। ये मुख्य रूप से दिगंबर मुनियों के ऊपर लागू होती। उनकी ये जो ऐष्णा समिति होती है वो 46 दोष और 32 प्रकार के अंतराय, अपन आहार इधर महाराज आते देखते ना, उनकी कितनी सारे आहार में सावधानी रखनी पड़ती है, तब जाकर के वो आहार कर पाते हैं। ये सब मन का संयम है। इनमें से एक भी नहीं पला तो एक ही टाइम आहार जल लेते हैं, तो भी एक भी नहीं पला और 32 अंतरायों में से कोई भी एक अंतराय आ गया तो अपना भोजन नहीं करते हैं। इसका मतलब भोजन के प्रति आसक्ति नहीं है। जैसे तैसे पेट भर लेना ये साधु का लक्ष्य नहीं होता है। अगर हमारे जैसा आहार चाहिए वैसा शुद्ध सात्विक और विधि पूर्वक हमको मिला तो हम भोजन करेंगे, नहीं तो हम भूखे रहेंगे, अपना तपस्या करेंगे। ये ऐष्णा समिति कहलाती है, सावधानी पूर्वक आहार करना। और चौथी है, बोलो चंदन, आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण का मतलब वस्तुओं को लेते देते समय इतनी सावधानी रखना कि किसी जीव को कष्ट नहीं हो। अब ये मुख्य रूप से तो मुनियों के लिए है। मुनियों के लिए वस्तुओं का लेना देना क्या होता है? उनके पास कितनी वस्तुएं होती है? कदाचित एक कमंडल होता है, शुद्धि के लिए पानी रहता है उसमें। एक पिच्छी रहती है जो उनके जीवों को प्रासुक करने के, स्थान को प्रासुक करने के लिए होती है। और एक उनकी पुस्तकें रहती हैं, और कदाचित कोई माला हो, कुछ हो, ऐसी कुछ ऐसा रहता है। तो उनको जब रखते हैं, उठाते हैं, उस समय सावधानी रखना। कमंडल रखा और बिना देखे कमंडल को वहां रख दिया तो हो सकता है उसके नीचे कोई चींटी हो तो मर जाए, तो ये ध्यान रखना। पुस्तक उठाई और अपनों ने ली, और जैसे हम पन्ने बंद करते हैं तो हो सकता है उसके अंदर कोई जीव हो और हमने पन्ना बंद कर दिया तो उसमें फंस के मर जाता है।
तो ये सब ध्यान रखना, और रखते समय भी जिस स्थान पर रखते हैं वहां छोटे से छोटा जीव नहीं हो उसका ध्यान रखना। ये आदान निक्षेपण समिति के उठाते समय और रखते समय सावधानी रखना, उसको आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। और लास्ट में है निष्ठापन समिति, उसको व्युत्सर्ग समिति भी कहते हैं। कि व्युत्सर्ग समिति अथवा निष्ठापन समिति अपने जो शरीर की अशुद्धियां हैं, मल मूत्र आदि हैं, मल मूत्र श्लेष्म 3 प्रकार की अशुद्धियां हैं, जो एक मलमूत्र और एक नाक से अशुद्धि निकलती है, वो ये 3 प्रकार की अशुद्धियों को त्यागते समय सावधानी रखना कि जहां हम अशुद्धि का त्याग कर रहे हैं वहां पर कोई जीव जंतु मर तो नहीं गया है अथवा वो पहले से कोई मौजूद तो नहीं है, ऐसा ध्यान रखना। और वो हम दूसरों की जुगुप्सा का कारण नहीं बने, दूसरों का ग्लानि का कारण नहीं बने, ऐसी जगह उनका त्याग करना। इसका हम कहीं भी थूक देते हैं, अब वो दूसरा बेचारा देखता है तो उसको ग्लानि होती है, घृणा होती है, तो वो अजागृति का पाप किसको लगता है? हमको लगता है। हमारे निमित्त से उसको इस प्रकार के परिणाम हुए, तो हमने जागृति नहीं रखी, इसका हमको पाप लगता है। तो ऐसे जागृति पूर्वक प्रासुक स्थान पर, जीव जंतु रहित स्थान पर, और जहां जन साधारण कम हो ऐसे स्थान पर, योग्य जगह पर मल मूत्र श्लेष्म आदि का त्याग करना, इसका नाम व्युत्सर्ग अथवा निष्ठापन समिति कहलाता। ये 5 समितियां, ये मुख्य रूप से मुनियों के लिए, श्रावक के लिए यतना है, सावधानी है। तो अपने हो सके जितना 4 प्रकार की जो हिंसा है ना, 4 प्रकार की हिंसा की किसको पता है? 4 प्रकार की हिंसा, अनुपम भाई बोला। आरंभी, उद्योगी, विरोधी, संकट, ये 4 प्रकार की हिंसा। बहुत अच्छा। हिंसा 4 प्रकार से होती है। आरंभी मतलब कोई भी हम घर का काम करते हैं तो आरंभ करना, झाड़ू लगाते हैं, कचरा पोता करते हैं, अथवा पानी भरते हैं, गमनागमन, भोजन बनाते हैं, ये सब आरंभी हिंसा कहलाती है। तो उसमें हम सावधानी नहीं रखते हैं, ये गृहस्थ के लिए भी है, उसमें भी जितना हो सके उतनी सावधानी रखें तो उससे बच सकते हैं। जैसा मुनि बच सकते हैं, मुनि तो करते ही नहीं है कोई आरंभ, अपने को आरंभ करना पड़ता है। फिर उद्योगी, व्यवसाय करते हैं, आजीविका, तो हमारे आजीविका कमाने में किसी की फैक्ट्री चल रही है, कोई क्या है, अथवा हम कोई टीचर वगैरह है तो हम स्कूल में जा रहे हैं, तो हमारे कार लेके जा रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी हिंसा होती है। तो किस प्रकार से हम कम से कम इन साधनों का उपयोग करें, ये सब चीजें उद्योगों में हमारी आजीविका के कारण से जो हिंसा होती है, दूसरे लोगों को पीड़ा होती है, उसको कैसे कम कर सकते हैं। विरोधी हिंसा, कोई अपने ऊपर कोई आक्रमण करता है तो उसके बचाव में जो हिंसा होती है वो विरोधी हिंसा कहलाती है। तो किस प्रकार से हम क्षमा रख सकें, ज्यादा से ज्यादा विरोध ज्यादा से ज्यादा नहीं करें, जब अपरिहार्य हो तभी विरोध करें, जब बहुत नुकसान हो रहा है तभी विरोध करें, सामान्य रूप से तो अपने को क्षमा भाव रखना चाहिए। और लास्ट में संकल्पी हिंसा, पहले की 3 हिंसाएं हैं, उसको पूरी तरह से गृहस्थ व्यक्ति नहीं त्याग सकता, उसको थोड़ा ना थोड़ा आरंभ काम करना पड़ेगा, थोड़ा उद्योग धंधे भी करने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत विरोधी हिंसा भी उसको करनी पड़ती है, क्योंकि अपना बचाव के लिए वो करना पड़ता है उसको, क्योंकि अपने शरीर का त्याग कर दे ऐसी अभी उसकी भूमिका नहीं बनी है, और दूसरों की रक्षा करने का भी उसको दायित्व है, इसलिए वो सब करना पड़ता है, पर उसमें भी कम से कम करें। और संकल्पी हिंसा का पूरी तरह से त्याग करें कि मैं जानबूझ करके किसी भी जीव को सताऊंगा नहीं, इसका नाम संकल्पी हिंसा का त्याग कहलाता है। तो श्रावक को इसका त्याग करना चाहिए, और श्रावक को ऐसे झूठ का त्याग करना चाहिए जिससे किसी के प्राणों की हिंसा का घात हो। यह सावधानी रखना कि किसी के प्राण संकट में आ जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलना। ये समिति, ये भी व्रतों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी समिति की बात कर रहे हैं। तो ऐसा अनावश्यक बोलना नहीं वगैरह, ये सारी चीजें होती है। ऐसी चोरी नहीं करना कि जिसके कारण से बेचारों का सारा उजड़ जाए। आपने छोटा मोटा कर लिया, किसी का पेन ले लिया, किसी का क्या ले लिया, तो ये तो क्षम्य है आपका,
परंतु वो उस बेचारे का जो सबसे प्रिय वस्तु है वही आपने छीन ली, ये सब चोरियां कहलाती है। फिर भाव चोरियां हैं वगैरह। तो इसका नाम समिति यत्ना पूर्वक, सावधानी पूर्वक, जितना हो सके उतना अपने कारण जीवों को कम कष्ट हो ऐसा अपना जीवन बनाना। और ऐसा जीवन तभी बन सकता है जब हम अपनी आवश्यकताओं को कम करें। आवश्यकताओं को कम करेंगे तो हमको परिग्रह कम रखना पड़ेगा, आरंभ परिग्रह कम करना पड़ेगा, तो ये संभावना हो सकती है। और उसका सबसे उत्तम उपाय सादगी पूर्ण जीवन जीना। सादा जीवन और उच्च विचारों वाला जीवन जितना जिएंगे तो हम समिति पूर्वक और व्रत पूर्वक जीवन जी सकते हैं। आगे का कल कोई ने पूछू हो तो पूछ सकते। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे ध्यान महि, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय। ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन। एक मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।